What is data set? Why do we use data set? Where to use a data set? Discuss all the scenarios where you can use data set. पूरा प्रॉपर 5 मिनट बोलना है इंग्लिश में. The collection of tables is written from database and it sources designated node. Whenever we need to do something in our certain application, and then we use to rely on database. हो गया 4+. वेरी गुड. बेटे मैं कमेंट नहीं करता, मैं रियलाइज कराता हूँ बस. आपकी बात का सर ने खड़ा कर दिया, मैंने इंसल्ट कर दिया. मैं रियलाइज कराता हूँ. अभी बाहर तो बंदे बैठे हैं 5+ के, शेयर पॉइंट कर रहे हैं, मैं WCF ज्वाइन करें, उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ. शॉक होके बैठे हैं बाहर में दो बंदे सोफा सेट पे. कोई जगह है पुलवामा से काफी दूर, मानेश्वर, वहां से क्लास करने आए. बोल दिया व्हाट इज क्लास, नहीं बोल पा रहे. मैं पढ़ाता नहीं और रियलाइज कराता. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, आज से मैं काफी सीरियस हूँ. जिसमें मैं सीरियस था फरवरी मार्च अप्रैल के महीने. लाइट की यही स्थिति रहेगी, हम कुछ नहीं कर सकते. हम हर बैच को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे. राइट. डेटा सेट is primarily made. Data set is primarily made. It is mainly made. Word सुनो. Data set is primarily made. It is mainly made to work in offline process. आपको बेटे बोलते हैं ना, आप कुछ और बोलते, और तुम क्या बोलते मुझे पता नहीं. जो भी बोलो स्टैंडर्ड में बोलो. डेटा सेट इज प्राइमरीली मेड. इट इज मेनली मेड टू वर्क इन ऑफलाइन मोड. इज कॉल्ड डिस्कनेक्टेड मोड. ऑफलाइन इज कॉल्ड डिस्कनेक्टेड. ऑनलाइन इज कॉल्ड व्हाट? Second point, data set is a class within data namespace. Data set is a class within data namespace, and this class has got a base class is called Marshall by value. Data set is a class, it has got a base class called Marshall by value. Look at the term uncle, by value and by reference. In C programming, by value is called offline or disconnected, or by ref is called online or connected. So why data set is disconnected? Because it has got a base class called Marshall by value. Okay. Third, data set supports collection. Data set support collection. Collection means we can hold multiple items in single container. As a array is a collection of records. Data set support collection means we can hold multiple tables according to our requirement. Don't try to spell the data set is a collection of tables. It makes a worst impression. Start like this. Data set supports collection. If it is support collection, then we can hold
multiple tables in data set. Like array supports what? Collection of data or elements by subscript 0, 1, 2, 3. Similarly, if we have multiple tables in data set, we can go 0, first table, 1, second table. Once we get a complete table or multiple tables in data set, what benefit I can get? Sir, when I was making a front end with a database, I can perform all the operation in table of database. I can perform all the operation in table of database. If we have got same table in data set, no problem. I can do again, perform all the operation by data set. That is why data set is a subset of database. तो बेटे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपकी कल पहली क्लास है, आप 10 की और आपको कल करना है क्लास। अभी याद रखो बच्चे, आप कहीं भी जाओ, डोंट ट्राई टू स्पीक लाइक दिस, बंदा याद करके बोल रहा है। मैं ये बोल सकता था डेटा सेट इज ए सबसेट ऑफ डेटाबेस, क्यों बोलूँ? इट इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स, क्यों बोलूँ? अगर बेटे मैं ऐसे बोलूँगा कि मेरे और दीप्ति में कोई अंतर नहीं, और मेरे और किसी फैकल्टी में फिर अंतर नहीं, आप उसको पहले एक्सप्लेन करो। दिस इज द कॉज, इट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डोंट ट्राई टू से एज ए बुकिश वर्ड, इट इज ए सबसेट ऑफ डेटाबेस। व्हाई इट इज कॉल्ड सबसेट? बिकॉज I can perform all the operation in database, and I will not fill the absence of database. I can perform all the operation in data set. Like you have got an elder brother, you have got a father. Father has gone somewhere for 2 days. You will not fill the absence of father because you have got an elder brother. He is caring what father is caring for you. So elder brother is behaving as a what? Father. But he is not a father. He is behaving as a father. He has taken your all the responsibilities. That is why data set supports business logic. और फिर अंकल आप ये बोल दोगे डेटा सेट सपोर्ट बिजनेस लॉजिक, बंदा याद करके बोल रहा है यार। वाई सपोर्ट बिजनेस लॉजिक? मैं इस लड़की का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पापा होंगे, पापा हैं कहीं गए हुए बाहर, तो मेरे को पापा पैसे देते हैं फीस के लिए। पापा अभी होंगे तो उनसे बोलो पापा ये ला दो मार्केट में। मुझे ये सारी बातें बोलने में अपने भाई से दिक्कत नहीं हो रही। I will not fill the absence of my father if brother has taken the place of father only for 2 days. Means business logic. ये नहीं कि पापा आएंगे तो उनको ये बात बोलेंगे, नहीं नहीं भाई भाई को दिक्कत नहीं। तो डेटा सेट is a subset of database. If it is a subset of database, कल तक हम जो बात डेटाबेस से कर रहे थे, आज वही सारी बातें किससे कर रहे हैं? डेटा सेट से कर रहे हैं, बिना हिचक के साथ, बिना कोई हेजिटेशन के साथ। दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक। मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है डेटाबेस के द्वारा नहीं, किससे बोलो? डेटा सेट के द्वारा। सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होना, ये क्या बोलो बेटा? बिजनेस लॉजिक। एक पेपर पे आपको मैंने 15 नाम लिख कर दिए, सिर्फ 12 ला सकती हूँ, 3 ही ला सकती हूँ, नहीं पेपर वापस करो बेटा, ये आपका गलत बिजनेस लॉजिक। जिस हमें ये फील हो जाएगा हमें ये टॉपिक नहीं आती है, उसमें सेंटर को बंद करो। तो बेटे यहाँ पढ़ाने से पहले घंटों पढ़ के आते हैं, बट ये मत कहो हमें वो चीज नहीं आती। ठीक है, सेंटर को रन करने का, पढ़ाने का, रन करने का नहीं, पढ़ाने का सारा बिजनेस लॉजिक मुझे पता है, और सेंटर को रन करने का दीप्ति गुप्ता को सारा बिजनेस लॉजिक क्या बोलो पता है। तो व्हाट इज बिजनेस लॉजिक? टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, टू परफॉर्म द ऑपरेशंस। व्हाट इज बिजनेस लॉजिक? टू परफॉर्म द ऑपरेशंस,
to perform all the operation, do you have mechanism or not? किसी काम को सारा अंजाम देने के लिए तुम्हारे पास सुविधा अवेलेबल है कि नहीं? To perform all the operations, do you have all the methodologies or not? ये methodologies हैं, क्या है? अब सिलेबस देख लो, सिलेबस देख लो। आ गया वो, चलो आप अपना देख लो। मैं इंसर्ट कर सकती हूँ, मैं अपडेट कर सकती हूँ, मैं डिलीट कर सकती हूँ, मैं मल्टीपल टेबल होल्ड कर सकती हूँ, मैं सर्चिंग कर सकती हूँ। आई कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन बाय डेटा सेट। इफ यू डू then you can take the place of database, but don't try to say data set is a database. एक बड़ा भाई फादर कभी नहीं बन सकता है। It is behaving as a father. Data set is behaving as a database. It's not a database. अच्छा, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उससे यार मुझे बताओ, एक डेटा सेट डेटाबेस के साथ बिहेव कर सकता है, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों बनाया डेटा सेट? इसका मतलब एक चाइल्ड बस एक फादर की तरह बिहेव कर सकता है क्या? वो शायद अपना गुण नहीं है। तुम मेरा फोटो कॉपी कर रहे हो और कुछ नहीं कर सकते एक्स्ट्रा क्या? अगर एक डेटा सेट एक डेटाबेस की तरह बिहेव कर सकता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने कितने साल के बाद इसने बनाया डेटा सेट जो डेटाबेस की तरह बिहेव करे? उसकी तो अपनी पर्सोना नहीं है, उसकी अपनी फीचर नहीं है, उसका लाजवाब फीचर है डेटाबेस के पास नहीं है। इसलिए बोलते हैं इनहेरिटेंस में इफ चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम द फादर then child is behaving as a father. But if child has own functions, it is powerful than the word father. और उस दिन फादर को गर्व होता है मेरा बेटा मुझसे आगे निकल गया। पॉइंट का भी जीनियसनेस 0 पॉइंट का भी जीनियसनेस नहीं आ सकता। Any father has dream that my child can go better than me. तो अगर बेटा डिराइव क्लास अगर बेस क्लास से पावरफुल नहीं है तो सुन ले, वो डिराइव क्लास की डिपेंडेंसी बोलो कहाँ पे? बेस क्लास के ऊपर। ये इनहेरिटेंस का डेफिनेशन है। If derived class is not mentally or physically richer than base class, then base class is whole year, whole month, whole lifetime is uncomfortable. ये डेफिनेशन में बेटे कल रात में बनाया है। क्यों? हमें नहीं पता था। मेरे अपार्टमेंट में एक ऐसा बच्चा भी है जिसका ब्रेन काम नहीं करता है और 9 साल का बच्चा 11 साल का बच्चा है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम देख रात अंधेरा दिखाने मेरे को। पर मैंने कल पहली बार देखा उसके फादर मदर उसको लिफ्ट में पकड़ के साथ ले जा रहे थे। मैंने कहा भैया, बोला उनको, भैया ये क्या है? आपको मैंने पहली बार देखा। हाँ, मेरा बच्चा ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है। क्यों? इसको बचपन से प्रॉब्लम है। सोचो उस बाप के लिए बेटा सिर दर्द नहीं है तो बाप ने बेटे की अब लाइफ टाइम क्या लेगा? बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पैर में कोई दिक्कत है, चल नहीं पाता है, ब्रेन में फंक्शनिंग नहीं करती है प्रॉपर और चलने में उसको दिक्कत है। Derived class is not powerful than the base class. Then base class is taking a responsibility for the what? Derived class. And what derived class, base class thinks, या जब मैं बड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा तो derived class responsibility ले ले तो अच्छा रहेगा। पैसे का नहीं, केयरिंग का यार। So if a derived class derived from the base class, very good. Derived class can call the function of base class. But base class thinks how long a derived class will call my functions.
one day he has to prepare for calling own functions. That is why logically and physically derived class should be well versed, well maintained, well qualified and in his class. If data set is behaving as a database and in data set is not having any extra feature of data, if data set is not having extra feature comparing to database, then why we have data set? अगर डेटा सेट डेटाबेस की तरह बिहेव करता है और डेटा सेट के पास कोई नया फीचर नहीं है तो क्या फायदा डेटा सेट को सीखने का? फिर डेटाबेस ही सीखो ना। आपसे बोलूं अंकल, आप बहुत से सुनिए, आपको पता मैं क्या बोल रहा हूँ। डेटा सेट आपको पढ़ा करा चुके हैं। डेटा सेट सपोर्ट एक्सएमएलाइजेशन। आपने कर रखा है, ये बच्चा भी कर रखा है। कौन सा टॉपिक? डेटा सेट इन वेब सर्विस एंड WCF। डेटा सेट सपोर्ट एक्सएमएलाइजेशन। अगर डेटा सेट XML सपोर्ट करता है तो मैं वेब सर्विस में यूज करूंगा डेटा सेट को, मैं वेब सर्विस में WCF में यूज करूंगा डेटा सेट को, और डेटा जो आएगी XML के फॉर्म में आएगी और किसके अंदर जाएगी? इनवेलप के अंदर। इनवेलप कहां जाएगा? प्रोटोकॉल के ऊपर। इस पॉइंट पे बच्चों कैसे पढ़वा यार, इस पॉइंट पे एक X बंदा है जो डेटा सेट लेकर बैठता है और डेटा सेट डेटाबेस से टेबल लेता है और डेटा सेट उस टेबल का अंकल XML जनरेट कर सकता है और XML जनरेट करने के बाद किसको देगा? सारे क्लाइंट्स को देगा। If data set support XML, then we can achieve NTL architecture. And what is NTL? और ये क्वेश्चन आप झंकार सर से पूछना कि ये NTL क्या है, उससे पूछा गया मलेशिया वाले कंपनी में, उसका सिलेक्शन हो गया। व्हाट इज NTL? NTL का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम कैसे बनोगे डिस्ट्रीब्यूटेड? जब तक आपको नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश नहीं आएगा, इंग्लिश, आप डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बन सकते। NTL के लिए, NTL का मतलब ये होता है एक डेटा कहीं भी एक्सेस हो जाए, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी टैब मत करें, किसी भी टीयर के ऊपर मेरी हर बातें आपको समझ में आ जाए और आप मेरी बातों को किसी और को समझा पाए, वो भी किसी और को समझा पाए। ये बोल क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। तभी पॉसिबल होगा जब मेरी इंग्लिश आप सुनोगे और वही इंग्लिश आप किसी और को बोलोगे, वो भी किसी और को बोलेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सटेंडिबिलिटी। तो डिफरेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड में और एक्सटेंडिबिलिटी में? एक्सटेंडिबिलिटी का मतलब ये हुआ अंकल एक ही वंश के अंदर, एक ही पीढ़ी के अंदर। इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इनहेरिटेंस एक्सटेंडिबिलिटी है। ड्रॉबैक ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे आपके फादर आपको देते हैं बुरा मानना, और आपके फादर के फादर आपके फादर को देते थे, बट आपके फादर आपके भतीजे को नहीं देते हैं, आपके फादर भांजा को नहीं देते हैं। ये एक्सटेंडिबिलिटी है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बस वो अपने फैमिली का सोचते हैं, किसी और फैमिली का नहीं सोचते हैं। ये सेल्फिशनेस है टू द चाइल्ड। ये चाइल्ड की ज्यादा केयरिंग है, उसकी बट केयरिंग नहीं। Father must be caring for the child. It doesn't mean only for the child. He can also go for beyond the limits. So बेटा extendibility inheritance का future है और distributed inheritance का future नहीं है। तुम ये बोल सकती हो distributed is a broader look of what? Extendibility. क्या बोलते हैं? कभी कभी इस पॉइंट से बाहर निकलो और सबका सोचो।
तो डेटा सेट सपोर्ट करता है, बोलो कौन? डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉल एन टियर। क्यों? ये डेटा कहाँ से ला सकता है? डेटाबेस से। और किस फॉर्म में लाएगा? XML के फॉर्म में। और किसी को डेटा भेज सकता है। कैसे भेजेगा? अटैचमेंट करके, बाय एनी हुक एंड क्रूक मेथड्स। कैसे भी कर, ये नोटिस बोर्ड ले, चंदन को ले, जो आप पूरे नोएडा में लगा के आओ, ये लगा दो फेसबुक के ऊपर, हर लोग देख लेंगे। दीप्ति क्या करती है? नोटिस बोर्ड ही लगाती है। दीप्ति मेरे फेसबुक के ऊपर वॉल पोस्ट करती है कोर्स के, पर लैंग्वेज हिंदी तो नहीं है, बंगाली तो नहीं है, उर्दू तो नहीं है, क्या बोलो? इंग्लिश है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हिंदी, उर्दू, बंगाली की शिकायत करी। बेटी एक्सटेंडिबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप मान लो हिंदी हो, आपकी फैमिली में हिंदी चलती है, अब बेटा उर्दू हो ना, आपकी फैमिली में उर्दू चलती है। अंकल है, इनकी फैमिली में पंजाबी चलती है, किसी के फैमिली में मिक्स मोड भी चलती है, बट ये एक्सटेंडिबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हुआ कोई भी बंदा मेरी चीजों को एक्सेस कर सकता है विदाउट हैसल एंड एनी इंटरप्शंस। तो डेटा सेट अगर डेटाबेस के जैसा है, इसका मतलब डेटा सेट के पास अपना कोई गुण नहीं है। एक चाइल्ड अगर फादर के जैसा है, तो चाइल्ड के पास कोई अपना गुण नहीं है। एग्जाम्पल सुन लो, दीप्ति गुप्ता का अरबों का बिजनेस है, करोड़ नहीं अरबों का बिजनेस है, अरबों। इसके मेरे हस्बैंड से मिला, मात्र मेरे से 2 साल छोटा होगा, क्या बिजनेस करता है। मैंने कहा यार आपने अपनी वाइफ को मेरी पार्टनर क्यों बनाई, पहले बताओ। कहता है मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वाइफ मेरे बिजनेस में हेल्प करे। इससे क्या होगा? मेरा बिजनेस एक ही प्रकार का ग्रोथ करेगा। कल भगवान न करे मेरे बिजनेस में घाटा होगा, इसको भी प्रॉब्लम होगा। उसका दिमाग देखो, और उसका दिल्ली के मोस्टली एरिया में, अच्छे एरिया में उसका शोरूम, वो पता नहीं किस चीज का है, फूड जो भी। तो बेटे उस बंदे का विजन देखा, इसलिए मैं चाहता हूं आपके साथ ये काम करें और काम सीखें। उस लड़की, उसके फादर ने और उसके हस्बैंड ने और उसके फादर इन लॉ ने, तीनों का बिजनेस है, उसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करने दिया। अगर करता तो एक्सटेंडिबिलिटी होती। आप मेरे बिजनेस से बिल्कुल बाहर हो। और लड़कियां बैठी पसीने में, इसका मैंने घर देखा है कैसा है। हमें डिस्ट्रीब्यूटेड बनना है, बोलो कौन? एक ही परंपराएं को आगे नहीं रखना है कि बेटे उसमें डिपेंडेंसीज आती है, उसमें फादर और चाइल्ड की सोच एक ही जैसी होती है। और लड़कियां यहां भी सक्सेस कर गई, अब यहां से भी अर्निंग करके अपने हस्बैंड को देती, वहां भी जॉब करती, अपने हस्बैंड को देती, तो वहां पे डिपेंडेंसी आती। ये दिक्कत है इनहेरिटेंस में। अगर डिराइव क्लास बॉर्डर नहीं है, अगर डिराइव क्लास शार्प नहीं है, डिराइव क्लास वाइडेंड नहीं है, उसकी डिपेंडेंसी बोलो कहां पे है? बोलो बेस क्लास पे। डेटा पॉइंट यू गाइस, तो डेटा सेट एक्सटेंडिबिलिटी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ड्यू टू व्हाट? XML, जो टेबल के डेटा को XML के फॉर्म में रखता है और सबों को देता है। ऐसा अंकल, अब 2 मिनट का ब्रेक, अब आते हैं एग्जाम्पल। अब क्या करेंगे बेटे? डेटाबेस में एक टेबल बनाएंगे, उसको कहां पे लेकर आएंगे? डेटा सेट में। डेमो दे रहा हूं मैं आपको। मुझे पता अगला क्वेश्चन आएगा, मुझसे पूछेगा हाउ डेटा सेट सपोर्ट एक्सएमएलाइजेशन, मुझे पता है। तो डेटाबेस से एक टेबल ले, डेटा सेट में डाल, और उसे क्या कन्वर्ट कर? XML कन्वर्ट कर, और अटैचमेंट सबको कर दो। हर को इंफॉर्मेशन मिल गई, कैसे भी मिल गई। तो मन की बातें हर लोगों ने पढ़ ली। यहां से सप्लायर का नाम, उसको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, सप्लायर का नाम,
ठीक है, कैरेक्टर ऑफ 20 बाइट्स। सप्लायर क्या सप्लाई करता है? और उसका फोन नंबर। ये तीन चीज का नाम हर को देना है। जो सप्लायर के नाम हमें हर को देना है। पसंद आया जी, फोन कर दो उसको। बस चेक करके आए कर। अभी जो मैंने बनाया टेबल किसी डेटाबेस में, और डेटाबेस का एमडीएफ के अंदर मुझे तीनों क्लाइंट को एमडीएफ कॉपी करके देना पड़ेगा, और एमडीएफ वही खोल सकता है जिसके पास क्या एसक्यूएल सर्वर है। फिर डिपेंडेंसी आ गई, एक्सटेंडिबिलिटी हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। इक्वेशन क्या बना? इक्वेशन डेटा सेट प्लस एक्सएमएल इज इक्वल टू व्हाट? और स्पेलिंग को छोड़ो, और इसकी इधर राइट में रखो, राइट में रखो, राइट में। अगर डेटाबेस है तो हर को डेटाबेस चाहिए। केवल क्या हुआ? एक्सटेंडिबिलिटी हुआ। अगर डेटाबेस है तो हर के पास क्या चाहिए बेटा? जैसे मान लो यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे एक टेबल है, एक क्लाइंट है, तो क्लाइंट के पास भी क्या चाहिए बोलो? डेटाबेस। और यहाँ आ जाओ, अगर क्लाइंट यहाँ है, एक और क्लाइंट, अगर इसको इससे जोड़ दो, अगर क्लाइंट यहाँ पे है, आई मीन ये प्रोग्रामर यहाँ पे है, यहाँ कस्टमर है, उसको क्या दे देगा? वो क्या दे देगा? एक्सएमएल की फाइल दे देगा। अरे बोलो, और उसमें क्या होंगे बोलो? तो रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है, और दोनों को पढ़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। बट इसको क्या मिलेगा? टेबल मिलेगा। तो अंदर इस क्लाइंट को क्या मिला? टेबल मिला। और इस क्लाइंट को क्या मिला? एक्सएमएल मिला। और एक्सएमएल कौन जनरेट कर सकता है? डेटा सेट, न कि डेटाबेस। इसलिए ये यूज कहां पे होता है? ये WCF ऑफ वेब सर्विस। कल पहली क्लास करके देखिए 11 बजे। अपना बेटा मैथ थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मैथ ये बोलता, जब आईटी इंडस्ट्रीज में आए हो हर चीज सीख के जाओ। मन में ये ना रहा है कि वो नहीं आता, वो नहीं आता। क्या हमारे अंकल पूछने वाला कुछ ही पूछ सकता है। अफसोस ना हो कि मेरा रिजेक्शन हो गया। इनहेरिटेंस से आप कभी चेंज नहीं कर सकते। बोलो कौन? डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा होता कोई आदमी गरीब नहीं होता था, हर लोग समान होते थे। हो गया? अब ये प्रोग्राम इसको प्रूव करके दिखा यूजिंग सिस्टम। ये क्या सीख रहे हैं? वाई डेटा सेट। डेटा सेट is primarily made for
working in distributed environment or n-tier architecture, because data set has capabilities to convert the table into XML, and XML is a plain text data. It can open anywhere without any hassles or interruptions. अगर आप मेरे को रिज्यूमे दोगे वर्ड में, मैं नहीं खोल पाऊंगा। क्यों? वर्ड सपोर्ट नहीं करता है डिस्ट्रीब्यूटेड को। वर्ड को खोलने के लिए MS ऑफिस की आवश्यकता है। आप मेरे को दे दो, डेटा कहाँ लिख के दे दो, नोट पैड में दे दो, नोट पैड कहीं भी खुल सकता है। इतना बोलने के बाद उससे प्रोग्राम आप याद कर, प्रोग्राम नहीं दिखाओगे, बंदा याद करके बोल रहा है। पहले प्रूफ करो कैसे। कनेक्शन लिया, अब कमांड नहीं लेंगे, डेटा रीडर नहीं लेंगे, कमांड की जगह अंकल एडेप्टर लेंगे। एडेप्टर क्लास SQL डेटा एडेप्टर, देखो अब कमांड नहीं आएगा, SQL डेटा एडेप्टर आएगा। डेटा रीडर नहीं आएगा, डेटा सेट आएगा। अब दिमाग लगाओ, एडेप्टर से क्वेरी पास करोगे और क्वेरी का जो टेबल हो किसको दोगे, डेटा सेट को दोगे। वहां तुम कमांड से क्वेरी पास करते थे और डेटा रीडर को देते थे। अगर डेटा रीडर XML सपोर्ट करा होता, आपका छोटा भाई उन तरह इंग्लिश आई होती, फिर दिक्कत उसको नहीं होती। जिस बच्चों को सेंटर में इंग्लिश नहीं आती ठीक से, मैं ये सोचता हूँ इसका बोलता नहीं हो, इसका कुछ नहीं हो सकता। हमारा राइट अंकल, तो उसको बुरा लगे कि अच्छा लगे। मेरे पास एक से बिहार के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, काफी दिमाग के तेज होते हैं बिहार के बच्चे, पर उनकी जॉब को नहीं लगती है, ठीक से बोल नहीं पाते। मेरिटोरियस होते हैं, मेरिट्स होती हैं, उनके पास एक्सटेंडिबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो दोस्ती भी तो करते हैं बिहार के बच्चे, अपने वाले ग्रुप से करते हैं। क्यों? उन्हीं के लैंग्वेज में बात करते हैं। मजा तब है तो सबसे बात करके दे, तो बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। आप इस प्रोग्राम को उस प्रोग्राम से कंपेयर करोगे। मैं कल तक कमांड से क्वेरी पास करता था, अब बेटा कमांड से क्वेरी पास क्यों नहीं कर रहा? कुछ अगर हम कमांड से क्वेरी पास करेंगे, वो गलत किसको देगा, डेटा रीडर को देगा, और डेटा रीडर को XML नहीं आता। उससे क्या होगा? एक्सटेंडिबिलिटी तो होगी, एक्सटेंडिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। कृपया इन्वेलप का एड्रेस हिंदी में ना लिखें। क्यों लोग बोलते हैं ऐसा? हमारा तो हाईजैकिंग नहीं। अब तुम जरा कभी इन्वेलप का एड्रेस हिंदी में लिखेंगे। आप बिहार गए या हरियाणा गए तो वहां के लोकल लोग किसमें लिखते हैं एड्रेस, हिंदी में लिखते हैं। वो क्या एक्सटेंडिबिलिटी है? और आपका लेटर में जाएगा चेन्नई, आपको एड्रेस इंग्लिश में लिखना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करो, DS क्या करा, न्यू वर्ड। अब तुम्हें ऊप्स आई होती, अच्छी खासी ऊप्स आई होती। ये वाला पार्ट कहाँ लिखते बोलो? कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं। बोलो यार,
मेमोरी कहाँ लोकेट करते हैं? कहाँ स्ट्रक्चर में? मेरी मर्जी में कहीं भी करूँ, मतलब वहाँ पे करूँ। परंतु क्या देखो, परंतु क्या होगा? ये डेटाबेस है, इसमें टेबल असेंबल है, और बेटा डेटाबेस की जो टेबल होती है, उस टेबल का जो फॉर्मेट होता है वो बाइनरी फॉर्मेट होता है, और उस टेबल को कहीं तो कॉपी करेगी, वहां भी डेटाबेस चाहिए। बाइनरी फॉर्मेट को खोलने के लिए बाइनरी सॉफ्टवेयर होना मस्ट। आप दिमाग लगाओ, मेरे पास एक सॉन्ग है बेटे, मेरे पास विंडो मीडिया प्लेयर नहीं है, कुछ नहीं होना है सॉन्ग में, कुछ नहीं होना है। ये वही खोलेगा जब विंडो मीडिया प्लेयर है, ठीक है। एक्सटेंडिबिलिटी भी ये एक्सटेंड तभी होगा तो अभी तो विंडो मीडिया प्लेयर है। इस बच्चे ने मेरे को डॉक फाइल दिया, डॉक फाइल से मैं रिज्यूमे देख लो, और मेरे पास एमएस ऑफिस नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो डेटाबेस का टेबल वहां खुल सकता है जहां एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है, ओरेकल से भी नहीं खुलेगा। इसका क्लाइंट कौन बनेगा? इसके पास क्या डेटा बेस है, तो दिक्कत है। If you have got a database, if you have got a table, I can use a table maybe if I have got a database then. There is a condition. If I am building a table from your side, I have to have a what? Database. It means child is being managed by the what? Base first. तो वो सपोर्ट किसको करता है? किसको सपोर्ट करता है? एक्सटर्नलाइजेशन। तो मुझसे पूछे C++ क्या है? किस एज में आता है? क्या बोलूँ पता है? C प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड C++। तो मुझसे पूछे C# क्या है? C प्लस C++ प्लस न्यू फीचर being supported by CLR is called C#। तो डायरेक्ट हम डेटा से यूज करते डायरेक्ट डेटा डेटा सेट में बेटे काम इसलिए कर रहे हैं, वो सपोर्ट करता है बोलो कौन? एक्सएमएल। और टेबल का डेटा किस में आने होगा? एक्सएमएल में, और सबको पास कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है बोलो? वेब सर्विस और WCF कर रहा है। ठीक है, WCF टेबल लाएगा बोलो कहाँ से? डेटाबेस से। किसको देगा? डेटा सेट को देगा। वो क्या जनरेट करेगा बोलो? एक्सएमएल। अब यहाँ पे कौन आएगा? SQL डेटा कैप्चर। आप यहाँ से क्वेरी पास करो, और यहाँ पे क्या बोलो? डेटा सेट। यहाँ पे क्या आ गया? टेबल आ गया। ये टेबल ये कहाँ आ गया? डेटा सेट। ये डिस्कनेक्टेड हो गया, तो क्या करना डिस्कनेक्टेड का? तो मेन फीचर डिस्कनेक्टेड नहीं है, मेन फीचर क्या बोलो? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे मैं क्या करूंगा? यहाँ से XML की फाइल जनरेट करूंगा, और जितने बड़े क्लाइंट हैं उनको पास करूंगा। तो बोलो यार ये क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ।
इंडिपेंडेंट भी फीचर है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी फीचर है। तो बेटे आज इसमें ज़्यादा क्या पूछ रहे हैं बड़ो? डिस्ट्रीब्यूटेड डबल सर्विस कॉलोनी ऑफ ट्रायंगल। इसके फीचर कौन है? हम लोग पढ़ चुके हैं सिलेबस में, रिट्रीव करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना और क्रिएट करना। ये इसके फीचर है किसके? डेटा सेट। डीएस में टेबल आ चुकी है, डेटा सेट में टेबल आ चुकी है। डेटा सेट क्लास का एक फंक्शन याद करो, जीवन एमुलेटर, राइट XML। The write XML is a function of data set class which can convert the output of that table into XML file. अब क्या करो, 3 आदमी का तुम मेल ले लो, मेल ईमेल आईडी क्या अटैचमेंट कर दो, XML की फाइल। उसको सप्लायर का नाम मिल गया, आइटम का नाम मिल गया, फोन नंबर मिल गया, काम खत्म हो गया। काम होना चाहिए। तो बना लो फोल्डर, इसे मेल करना है। मेल किसको? क्लाइंट को। मेरे फोल्डर का नाम हो गया। क्या अचीव हुआ देखना अंकल, इसमें डेटा सेट में टेबल आ गई। यहाँ क्या अचीव हुआ? डिस्कनेक्टेड। और यहाँ पे क्या अचीव हुआ? व्हाट इज अरे बोलो यार, नहीं आया। डेटा सेट में टेबल आ गई, बाय वैल्यू हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया। और इस सबको क्या कर रहा है? सबको पास कर रहा है। अब मेन में न्यू वर्ड टी बन गई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल करो, टी डॉट टॉपिक का नाम क्या हुआ? आउट डेटा सेट सपोर्ट। और कल स्टार्ट कर रहे हैं नया बैच 11 बजे WCF का। अब बैच यही मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 12 बजे का है ना। और तो शाम का बैच में कब शिफ्ट किया है? 12 बजे किया है ना। अच्छा हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया। और कल नई बैच आप रिवाइज कर लेना। भारत नहीं करूँ तो हाउ डेटा सपोर्ट्स वर्क। अभी सब क्या है? एंड क्लियर है। कुछ जापान में है, भोपाल में है, फिर नेपाल में, सब क्या बोल रहे हैं? एंड क्लियर है। डिफरेंट जगह बैठा हुआ है, हर को मिल रहा है डेटा।
गया? आपके हार्ड डिस्क में, आपके फोल्डर में XML की फाइल आ गई, देख लो। कोई डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है। नाम क्या था? मेल अभी ये एक्सेल फाइल बनाए जिससे हमारे क्लाइंट को सबको देना पड़ेगा। अगर WCF होता हमें देना नहीं पड़ता, मुझसे दे देता। सर उसके बाद पूरा सिस्टम में देना पड़ेगा। हाँ, ये गलती हुआ डेटा सेट के साथ। अब सुनना, बच्चा मजा आ गया। ऐसा क्यों आया? अच्छा ठीक है। अब फिर तो यूज कर WCF। अब ये सोच, अंकल को ये काम मिला कि आप सबको मेल करो। कितना गंदा काम है बेचारे अंकल, आप बैठ के सबको मेल करें। अंकल ने डाली WCF। अब क्या होगा? ये मेल नहीं करेंगे, जो इनको रिक्वेस्ट करेगा उनको मिलेगा। ये ऐसा, अब ये डिलीवरी नहीं करेंगे। आप जिनको लेना है मेरे पास आओ। छोटा सी WCF है ये। ऐसा देख, WCF कहां से है और वेब सर्विस कहां से है? अगर बेटा वेब सर्विस नहीं होता, WCF नहीं होता, इनको सुबह से लेकर शाम तक हर को देना पड़ता, फ्री ऑफ डिलीवरी। WCF क्या बोलता है? जो रिक्वेस्ट करेगा उसको मैं देखूं। सर ये जो फाइल है तो पार्टिकुलर जो डेट में चल जाए उसके लिए तो काम नहीं करेगा, सब क्यों करेगा? कि नहीं करेगा? वो क्लाइंट कैसे कन्वर्ट करेगा? इंटरनेट है वहां पे, वहां भी WCF होगा ना। बता दें किसी का मत करो कैसे हो। और इसको तुम देखो, इस फाइल को खोलने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं, बस ये समझो। जरूर से वो दिमाग से निकाल दो। भाई डेटा मिल गया उसको, अब इसको मेल कर दूंगा मैं। क्योंकि मुझे मेल करना पड़ेगा। WCF होता तो मेल करना नहीं पड़ता। जैसे मुझे रिक्वेस्ट करता उसको फाइल मिल जाती। ये वाला फाइल प्लस मेल इज कॉल्ड NTF, बट ये वाला फाइल प्लस WCF इज बेटर NTF। अरे बोलो यार, ऐसा नहीं। ये तुम्हारी कहानी थी डेटा सेट। अभी ये नहीं पढ़ाया डेटा सेट का फीचर क्या